الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبى الله يعوضان في قول النصران في قول الجسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی تخلیق اور خیر اور شر کے مادہ رکھنے کے بعد خیر کا غلبہ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ سچ کو اچھی چیز سمجھتا ہے، وہ خیانت داری کو اچھا سمجھتا ہے، وہ حسن سلوک کو اچھا سمجھتا ہے. اس کے مقابلے میں ظلم کو، خیانت کو، جھوٹ کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے. اور یہ چیزیں اتنی بری ہیں کہ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا ہی دھوکہ کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو دھوکہ کرے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا عیب ہے جو کہ میری ذات کی شایان شان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی وہ جھوٹ بول بھی لیتا ہے تب بھی اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور یہ عیب میرے اندر نہیں ہوتا ہے. اب یہ اچھائی کا مادہ، چیزوں کے اچھا اور برا ہونے کی پہچان، پھر بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا، ان کو اپنے قریب نہ آنے دینا، ان کی نسبت اپنی طرف نہ ہونے دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اچھائی کی جو پہچان ہے، یہ خیر کا جو جی چاہ رہا ہے کسی کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کو پیدا کیا. اور مسند احمد کی روایت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں ہو یا کسی کافر کے گھر میں ہو، یولد علی الفطرہ، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اس کے اندر توحید پرستی کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اس کے اندر خیر کو اپنانے کا جذبہ غالب ہوتا ہے. تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر یہ وصف اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے. یعنی فطری طور پر تو، تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر تو ہر بچے کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ خیر کا جذبہ غالب ہے. اب جو چیز اس کو خراب کرتی ہے وہ خارج کی چیز ہے، خارجی عوامل ہے. اب ان خارجی عوامل کے اندر دو چیزیں سر فہرست ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان بگڑتا ہے. ان خارجی عوامل میں سے ایک عامل تعلیم ہے کہ انسان جو علم حاصل کر رہا ہے. اب علم کے جو ذرائع ہے، اصول علم کے ذرائع میں سب سے پہلے حواس خمسہ آتے ہیں جن کو ہم سینس بولتے ہیں. انسان آنکھ کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے کسی چیز کا، کان کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے، باتیں سن رہا ہے تو شخص تو ظاہر ہے اس کو معلومات آ رہی، آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے. تو پہلی جو چیز ہے جو انسان کو خرابی کا سبب بنتی ہے وہ انسان کی تعلیم ہے. اگر وہ اچھی چیزیں حاصل کرے گا، اچھا علم پڑھے گا، حاصل کرے گا، اچھی کتابیں پڑھے گا، اس کے پاس دیکھنے کو جو چیزیں ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے وہ اچھی چیزیں سنتا ہے تو اس کے اندر خیر کا مادہ غالب ہے. اور اگر اس کے پاس تحصیل علم کا جو ذریعہ ہے وہ خیر نہیں ہے، وہ غیبت سن رہا بیٹھا، وہ چیزیں غلط دیکھ رہا، موبائل کے دیکھے یا ویسے سوسائٹی میں دیکھ لے، تو ظاہر ہے جب وہ سنے گا ہی شر، وہ علم ہی جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ برا ہے، شر ہے، تو یقیناً اس کے اندر شر کا مادہ غالب ہوگا. اب بعض چیزیں اپنی فطرت میں ٹھیک ہوتی ہیں، اب انسان بھی اپنی فطرت میں ٹھیک ہے لیکن خارجی عوامل کی وجہ سے بگڑ رہا ہے. اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا عامل ہے جو انسان کو خراب کرتا ہے وہ ماحول ہے. یعنی اس کے گرد و پیش میں جو ہو رہا ہے وہ انسان اس سے متاثر ہو، اور اس کا جو ماحول ہے اگر وہ اچھا ہے تو ظاہر وہ انسان بھی اچھا بن جائے، اور اگر اس کا ماحول برا ہے، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ باہر کا ماحول ہو، جن کے ساتھ اس نے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ وہ آتا جاتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، اگر وہ برے لوگ ہیں تو انسان کے اندر بری چیزیں، بری عادات ڈیولپ ہوں گی. اب آج بھی دیکھیں سبھی کے بچے ظاہر ہے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں، اور
स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अब किसी बच्चे की आदत खराब होती है तो जो वालिदैन परेशान होते हैं तो पहली बात यही पूछते हैं क्लास में बैठता किसके साथ। अच्छा, बच्चा खराब हो रहा है, गली मोहल्ले में खेल किसके साथ रहा है। तो एक जो पढ़ रहा है वो उसकी खराबी का जरिया बन सकती है, और दूसरा वो माहौल जिनके साथ वो रह रहा है वो उसकी खराबी का जरिया बन सकते हैं। अब माहौल का कितना असर होता है, अहले इल्म उसकी एक मिसाल देते हैं, कहते हैं देखें पानी को देखें, पानी का मिजाज ठंडक है और पानी पिया भी इसीलिए जाता है कि इंसान की प्यास बुझ जाए, लेकिन अगर इस पानी को भी इर्द गिर्द में माहौल शिद्दत हरारत वाला मिले तो ये पानी भी गर्म हो जाता है। अच्छा, इस पानी को जो माहौल मिला वो गर्मी का मिला, पानी गर्म हो गया। आप बजाय फायदा पहुंचाने के कोई भी गर्म पानी कौन पीता है, वो एक अलग चीज है जो पीते हैं, वरना पानी तो अमूमन आदमी इसलिए पीता है कि प्यास लगी है या गर्मी है तो ठंडा पानी पिए। इसी तरह अगर इसमें बर्फ डाल दी जाए, अब खारजी आमिल की वजह से इसकी तासीर और ठंडी होगी, तो बिल्कुल ऐसी इंसान के वो भी जैसा माहौल मिलेगा तो वैसा ही बन जाए, वैसे ही ढल जाए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान के लिए फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। अब ये खौफ पैदा कैसे होगा, तक़वा कैसे आएगा, यूं समझ लीजिए कि जितनी भी इंसान में खूबियां हो सकती है उन तमाम खूबियों की जो बुनियाद है वो तक़वा है। यानी पहले तक़वा आएगा, खूबियां बाकी बाद में आएंगी। जितनी भी बुरी आदतें हैं वो इंसान ये समझे कि मेरे अंदर से निकल जाए, वो तब निकलेंगी जब उसमें तक़वा होगा, क्योंकि जब उसमें डर होगा जाहिर बुरे काम छोड़ देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तक़वा अपने अंदर पैदा करो, ये बुनियाद है, ये बेस है, इसके बाद तुम्हारी शख्सियत तामीर होगी। ये आएगा कैसे, कोई स्कूल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि कोई स्कूल करवा रहे हैं, तक़वा की डिग्री हमसे ले रहे हैं, आ जाएंगे एक साल कोर्स तक़वा का, मैट्रिक, एसएससी, बीएस, एमफिल, पीएचडी की डिग्री तो है, ये तक़वा की डिग्री कहाँ से मिलेगी, कोई भी नहीं करवा रहा, पूरी दुनिया में कोई कोर्स नहीं होगा तक़वा के नाम से। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकूनू मअस-सादिक़ीन, आपके गिरदो पेश में जो लोग भी सच्चे हैं, जिनकी बात भी सच्ची, जिनके काम भी सच्चे, जो अपने कौलो फेल में, अपनी बात और किरदार में जो लोग सच्चे हैं, आप उनकी सोहबत में रहा करें, अच्छे दोस्त बनाएं, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े, दोस्त अच्छे होने चाहिए जो नेकी की बात करें, जिनके दिलों पर, जिनकी जात पर पहले से अल्लाह का खौफ जारी है, उनकी सोहबत में बैठेंगे जाहिर है अच्छाइयां परवान करेंगे, नेकियां परवान चलेंगी, अच्छी सिफात, अच्छी आदत जो है वो इंसान की शख्सियत में आएंगी और बुरी चीजों से नफरत हो जाएगी। यही वजह है कि हम किसी भी अच्छी नशिस्त में थोड़ी सी देर के लिए भी बैठते हैं, उस अच्छी नशिस्त का कितना असर होता है, तो ये माहौल की वजह से ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को कहा, जो मुसलमान होते उनको ये हुक्म था कि हिजरत करके मदीना पहुंचे। सूरह अनफाल के आखिरी हुक्म है कि अगर कोई हिजरत करके मदीना ना आए तो आपको उसकी रफाकत से कोई सरोकार नहीं। हिजरत करना फर्ज था, जैसे कलमा पढ़ना फर्ज था, हिजरत करके आए ताकि यहाँ एक ऐसी सोसाइटी डिवेलप हो जहां पर लोगों के लिए सीखने सिखाने का जो अमल है वो तेजी के साथ परवान चढ़े। क्यों, इंसान जो है वो देखा देखी में काम करता है। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, आज बच्चा कह रहा है, उसने कहा बाबा मैंने ये चीज लेनी है, क्यों भाई, वो मेरे क्लास फेलो के पास ये चीज है, गाड़ी में ये लेनी है, मैंने खिलौना ये लेना है, मैंने पेंसिल ऐसी लेनी है, मैंने नोटबुक ऐसी लेनी है, मैंने साइकिल ऐसी लेनी है। क्यों, वो मेरे दोस्त के पास ऐसी चीज है, मेरे क्लास वालों के पास ऐसी चीज है। अच्छा, हम बड़ों को देख ले, ये मोबाइल आपने क्यों लिया है, तो मेरे कुलीग के पास है मोबाइल, गाड़ी ये क्यों ली है, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जो मेरा दोस्त है वो फलां टाउन में शिफ्ट हो गया, फलां जगह उसने प्लॉट लिया है, मैं भी वहां ले, उन्होंने ये काम किया तो हम भी ये काम करेंगे। तो इंसान देखा देखी में के काम करता है। इसे अल्लाह ताला ने इंसान की इसी नफ्सियात के पेश नजर नबी करीम को हुक्म दिया कि तमाम मुसलमानों को कहे दुनिया भर के जिस कोने में है हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। चुनाचे जो भी मुसलमान होता वो हिजरत करके पहुंचे ताकि सुबह शाम बच्चा आंख खोले, सोए, जागे, खुशी हो या गम हो, एक ऐसी सोसाइटी में वो पले बढ़े कि जहां पर कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में सारी खूबियां या सारे अमाल सरअंजाम दिए जाए। तो सबसे पहले है कि माहौल ऐसा होना चाहिए। अब बच्चा अगर घर में रहता है या हम घर में रहते हैं तो हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि वहाँ अच्छाई और खैर हो। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई इंसान सुधर जाए, उसका माहौल जो है उसको अच्छा मिल जाए, उसके अंदर से बुराइयां निकल जाए, तो उसका हल यही है कि हम उस इंसान को माहौल अच्छा बनाएं। ये जो अल फलाह हॉस्पिटल है डॉक्टर सरवर साहब का,
अब इसमें उनके पास मंशियात वाले लोग भी आते हैं, तो चर्च वगैरह पीते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं, हमारे भी कोई जानने वाले थे, उन्होंने मेरे रेफरेंस से, पुरानी बात है, एक बंदा इधर भेज दिया, वो चर्च वगैरह पीने लग गया, नौजवान 18-19 साल का। आज जब इनके पास ले गए, इन्होंने कहा भाई हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम जिससे दवाई पिला के उसको चर्च से नफरत पैदा हो जाए, हम उसका माहौल तब्दील करते हैं। वो यहाँ रहता है, कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ हमको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, ठीक है। और बाकी मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, मुख्तलिफ लोग भी आते हैं, मैं खुद भी इनको समझाता हूँ कैसे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है, ये हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, गाइडेंस उनको फराहम की जा रही है। हाँ बाकी जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, इसका वो है कि उनके की जो है वो मैदा जिगर खराब हो गया है, चर्च पी के कोई नशा वगैरह करके, हम उसको बेहतर करने की दवाइयां देते हैं, ताकत की कोई दवाइयां दे देते हैं। बाकी मंशियात से रोकने वाली चीज सिर्फ माहौल है, हमने इनका माहौल ठीक किया हुआ है। अब ये महीना रहे, 2 रहे, 4 रहे, कोई महीने में सुधर जाएगा, कोई 2 में सुधरेगा, कोई 4 में सुधरेगा। इनके वालिदैन को यही नसीहत करते हैं जब यहाँ से जाते हैं कि भाई इसकी सोसाइटी और इसका माहौल अच्छा कर दो, बस जिन्हें उठे बैठे वो अच्छे लोग होने चाहिए। और वो कहते थे कि मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसको सबसे पहले ये बात कहता हूँ, आप उसको तबलीगी जमात के साथ भेज, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा दर्स न दिए, फलां काम न करे, माहौल तब्दील करो। वो कहते हैं मेरे पास क्लिनिक में आने से बेहतर है अपने बच्चे को जमात के साथ भेजें, जो 15-20-30 हजार रुपया मुझे देंगे, वो 4 महीने इसके लगवाएं, उसके बाद देखें माहौल का असर क्या होगा। ना सिर्फ ये कि ये चर्च छूटेगी, कितनी अच्छाइयां उसके अंदर आ जाए। तो जो हमारा माहौल है इर्द गिर्द का, हमारे घर का माहौल, दुकान का माहौल, जहाँ हम खुद रह रहे हैं वो माहौल, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार, कुलीग, ये सारे अच्छे होने चाहिए, हम अच्छे लोगों को दोस्त बनाए। और फिर इस माहौल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज के हवाले से, आपने फरमाया कि अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, फसल्लु अय्युहन नास फी बुयूतिकुम फइन अफज़ल सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला अस्सलाह अल मक्तूबा, बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने फरमाया आदमी को चाहिए, बल्कि उसके लिए अफजल तरीन बात है कि वो फर्ज नमाज के सिवा बाकी नमाज घर में पढ़े। अब हालांकि पुरसुकून माहौल मस्जिद में होता है, घर में नहीं होता, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, बर्तन खड़क रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ अपनी ताबीर शख्सियत ही नहीं करनी, बाकी घर के अफराद का भी ख्याल करना है, उनकी तरबियत भी जरूरी है। लिहाजा फर्ज पढ़ो, और फुक़हा भी यही फरमाते हैं इन अहादीस की रोशनी में कि फर्ज के अलावा जो सुन्नत और नवाफिल है वो अपने घरों में पढ़ो। अब हम देखते हैं छोटा बच्चा क्या करता है, साइंस ये कहती है कि जो छोटा बच्चा होता है 5-7 साल का, सबसे पहले उसका दिमाग नशोनुमा पाता है सबसे ज्यादा। अब वो चीजों को फौरन कॉपी करता है, बड़ा आदमी कॉपी नहीं कर सकता इतना जल्दी चीजों को, छोटा बच्चा कॉपी करता है। आप जैसे सोएंगे, वाली साहब टांग पे टांग रख के सोते हैं, छोटा बच्चा सोएगा टांग पे टांग रख के सो रहा है। खाना जैसे वो खाएंगे वैसे वो खाना खा रहे हैं। बाप ने सर पे टोपी ली है, बेटा भी टोपी रखेगा। माँ पर्दा करती है, स्कार्फ पहनती है, बेटी छोटी सी वो नकल उतारेगी, स्कार्फ पहनने लग जाएगी। माँ कपड़े धो रही है, छोटा बच्चा जाकेगा मैं भी कपड़े धोऊंगा, मैं भी बर्तन धोऊंगा। अब कॉपी करने की हिस्स सबसे ज्यादा बच्चे में है, अगरचे उसकी मेच्योरिटी का ये वक्त नहीं है, वो बाद में आएगी तकरीबन 25 साल की उम्र में। लेकिन जो सीखने सिखाने का अमल है वो सबसे ज्यादा बच्चे में इस वक्त तेज है, और बड़ी वो लगन के साथ, बड़े शौक के साथ ये काम करता है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर हम अच्छाइयां उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा। माँ जो चाहती है कि उसके बच्चे में, बेटी में, बेटे में जो खूबियां परवान चढ़े, माँ बाप को वही काम करना चाहिए। अब बच्चे गालियां क्यों देते हैं, और बच्चा गाली भी दे रहा होता है, हंस भी रहा होता है। अब उसको बेचारे क्या बता मतलब क्या होता है, बस वो लफ्ज उसने सीखा कि मेरे वालिद साहब ने लफ्ज अदा किया है, मेरी वालदा ने लफ्ज अदा किया, पता नहीं कितना बड़े दराजात और मरातिब वाला लफ्ज है, उस बेचारे बेदर में तक गाली, और उसने वो सीख लिया, वो भी कहता है। अच्छा के बच्चे जो एक्सप्रेशन है बच्चे के, वो भी वो माँ बाप से सीखता है। कब गुस्सा आएगा, गुस्से के वक्त कौन सा लफ्ज अदा करना है, ये बच्चा माँ बाप से सीख रहा है, बहन भाइयों से सीख रहा है। तो माहौल को ठीक करना है। इसी तरह तिलावत के मुतालिक कुरान में आता है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घर में कुरान पढ़ाओ। अपनी फरमाया खासतौर पर सूरह बकरा पढ़ाओ, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां नहीं आ सकता, और किसी जादूगर का, किसी तावीज सोने वाले के तावीजों का भी कोई असर नहीं होता सूरह बकरा के मुकाबले। जिस घर में 7 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहां टिक नहीं सकता। अब तिलावत का कहा कि बच्चा ताकि, अब देखिए बच्चा जब बाकी सारे काम कर रहा है, और आपके तजर्बात में भी बात आई होगी, हम कुरान खोल के बैठ जाएं, पढ़ने लग जाएं, तो बच्चा भी आके पढ़ेगा। ये किताब मुझे दे दो मैं पढ़ूंगा। नमाज पढ़ेंगे, बच्चा नमाज की एक्टिंग करने लग जाएगा।
इसी तरह जिक्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है उसकी मिसाल जिंदा कैसी है, और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र न किया जाए उस घर की मिसाल वीरान घर कैसी है, और जिसमें जिक्र होता है वो आबाद घर। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर आबाद रहे तो घरों की आबादी पेंटिंग पेंटिंग और डेकोरेशन से नहीं है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं भी घर को आबाद करना तो तिलावत करो, नमाज पढ़ो। नमाज के बारे में भी आता है नमाज पढ़ो घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तिलावत के बारे में भी आता है तिलावत करो घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो जहाँ वैरान घर होगा, वैरानी के जितने भी मकामात हैं वहाँ शैतान का डेरा होता है, शैतान के मराकज़ ही वो जगह जो वैरान जगह। तो हमारे घर तो वैरान है, हाँ लाइटिंग वहाँ रखी हुई है, अल्लाह के यहाँ इस सेटअप की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब तरबियत कैसे होगी? अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी समझ लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ बड़े बड़े पैगंबर हैं, बड़े नबी हैं, बल्कि अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया उनका लक़ब है। खुद नबी, उनके बेटे नबी, इसहाक भी नबी और इस्माइल भी नबी, फिर इसहाक के बेटे याकूब भी नबी, याकूब के बेटों में भी हजरत यूसुफ भी नबी। जब फौत होने लगे, अच्छा जब ये फौत हो रहे हैं तो बाकी बच्चे भी तौबा ताइब हो चुके हैं, हजरत यूसुफ के भाई सब नेक हैं, उनकी भी इस्लाह हो चुकी, माफी नामा हो चुका, सब कुछ यूसुफ के आखिर में आता है। अब कितना नेक घराना आप अंदाजा करें, तो अपनी मौत के वक्त सबको जमा कर लेते हैं, और अल्लाह ताला ने उसका मंजर यूं पेश किया कुरान करीम में कि अम हदा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। याकूब अलैहिस्सलाम ने बावजूद इसके कि घराना सारा ही दीनदार है, सबको इकट्ठा करके पूछा, भाई ये बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या होगा, तुम्हारा चाल चलन क्या होगा, तुम्हारे सब रोज सुबह शाम तुम्हारे कैसे गुजरेंगे, नमाज के टाइम पे किधर होगे, दुकान पे होगे, मस्जिद में नजर आओगे। अब ये फिक्र लाहिक है। अब यहाँ उलमाए किराम ने जहाँ ये बात लिखी है कि अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से और हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से ये बात लाजिम है कि अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें, और मरने के बाद उनके मरने के बाद की जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि मरने के बाद इनका क्या बनेगा। मरते वक्त भी यही बात सवार हो इंसान के जहन पे। वहीं पर अहले इल्म ने ये बात लिखी है कि इतने बड़े नेक लोग अगर अपनी औलाद से गफलत नहीं बरत रहे तो आज के बड़े से कोई बड़ा सूफी हो, कोई आलिम हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई मुफस्सिर मुहद्दिस हो, उसे भी हर वक्त अपनी औलाद की फिक्र रहनी चाहिए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा आदमी बिजनेसमैन है, ये नहीं मेरा बेटा जो कोई मसला ही नहीं, मुझे तो अपने बेटे पे एतमाद है, मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है, कोई मसला ही नहीं। हर चीज पर नजर होनी चाहिए बच्चों के कि उनके सब रोज कहाँ गुजर रहे हैं, दिन में बैठे कहाँ, किससे मिले, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पे क्या देखा जा रहा है, ये जिम्मेदारी है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जो भी बना फिर रहा है वो निगरान और जिम्मेदार है, उसे निगरानी करनी चाहिए, कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। तो इसलिए बच्चों की तरबियत की फिक्र अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है, अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे। आज इंसान समझता है कामयाबी का जरिया पैसा, दौलत, गाड़ी, प्लॉट्स, हालांकि इंसान के जो चीज कामयाबी का जरिया नाकामी का बनेगी वो इंसान का सबसे बड़ा जो एसेट है वो इंसान की औलाद है। तो लिहाजा हमें इस सिलसिले में फिक्र करनी चाहिए। और फिर ये आज जो सारी गुफ्तगू की है ये खत्म इस बात से करने के आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, किसी को कम होंगी किसी को ज्यादा होंगी। खास तौर पे बच्चों के लिए ऐसा माहौल घर में होना चाहिए, हर वक्त मस्जिद में ऐसा माहौल होना चाहिए, इदारों में ऐसा माहौल होना चाहिए। लेकिन वो तो सारा जो है वो चीजें कमर्शियल हुई पड़ी है, वहाँ आपको पता है कि क्या कुछ होता है। हम सुबह शाम सारा दिन भागदौड़ करते हैं, किसके पीछे भागे भागे फिर रहे हैं। तरबियत जब माँ बाप की ही अव्वलीन तरबियत नहीं रही तो यार किसी इदारे वाले को क्या लेना देना, उनको तो ये है कि महीना पढ़े, फीस दें, चाहे जाके शाम को चोरियां करें, उनको क्या है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है जो उन्हें निभानी है। और चूंकि जो इदारे हैं बाहर के वो देखते हैं कि सोसाइटी की डिमांड क्या है, इदारे चलते हैं सोसाइटी की डिमांड पे। आज पेरेंट्स की डिमांड है ही नहीं कि उनके बच्चों की तरबियत की फिक्र की जाए, पेरेंट्स की डिमांड है कि नंबर पूरे होने चाहिए, इसलिए वो भी सुबह शाम इसी में सर मारते हैं, मगजमारी करते हैं, उनको भी कोई गर्ज नहीं तरबियत कैसी हो रही है। आप जाएं कि जितने पान की दुकानें बनी फिर रही हैं पान वाले, ये पता नहीं कौन कौन सी, हमें तो नाम नहीं आते, इलेक्ट्रिक वेव और पता नहीं उनको कहते क्या है, छोटे छोटे बच्चे पी रहे। आज 5वीं क्लास के बच्चों की आप हरकतें शरारतें देख ले, अल अमान वल हफीज। भाई ये बच्चा कहाँ से सीख रहा है? अब स्कूल में अगर बिलफर्ज हमारे पास आता है उसने 8 लेक्चर पढ़ने, कोई उस्ताद उसका अपना काम इतना है रूटीन का कि वो उसके 40 मिनट के लेक्चर में पूरे नहीं कर पाता, लिखने का, चेक करने का, उसके पास तो ऐसा कुछ बताने का टाइम ही नहीं। तो भाई बच्चा कहाँ से सीख के आ रहा है? 2 घंटे के बच्चे के पास मोबाइल था, टैब बच्चे के पास है, टीवी देखा जा रहा है, तो इधर से बच्चा क्या देख रहा है? माँ बाप कहते कोई मसला नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों अभी जो गर्मियों की छुट्टियां आगे आने वाली
ان میں خاصا ٹائم ہو. ایسا پلان کریں کہ بچے دین سے جڑ جائیں, بچوں کی نمازیں ٹھیک ہوں, بچوں کو دعائیں آتی ہوں. 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹی ہے, بچہ واش روم جا رہا ہے, جی بیٹا دعا سناؤ, نکلا ہے دعا پڑھ لی, کھانا کھا رہا ہے دعا پڑھ لی, ہاتھ دھوئے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے بالکل دھلوائیں ابھی سے, پہلے ہاتھ دھونے ہیں, اور جب والدین سارے ہاتھ دھوئیں گے. میرے گھر کی اپنی ترتیب یہی ہے, میرا 3 سال کا بیٹا ہے, 1.5 سال کی بیٹی ہے, ہم سب گھر میں ویسے ہی کرتے ہیں, ہاتھ دھو کے بیٹھتے ہیں. تو بیٹا بیٹی ہاتھ دھو کے آئیں گے, یا میں خود کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا بیٹی کو, وہ ہاتھ دھوئے گی پھر کھانا کھائے گی, ورنہ لقمہ توڑنے سے پہلے وہ یہی کہتی ہے کہ میں ہاتھ دھوؤں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم بھی انسان سستی ہوتی ہے, ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہاتھ بس ٹھیک ہے بھوک لگی ہے کھا لیں, لیکن جب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے بغیر ہاتھ دھوئے گائے تو اس کی عادت بن جائے گی, پھر چاروں ناچار اٹھنا پڑتا ہے, وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم یہ بات ذہن میں سوال کر لیں کہ بھائی بچوں کو 3 ٹائم روٹی دینے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انہیں دین سکھائیں, انہیں معاشرے میں جینا سکھائیں, تو پھر پہلی ترجیح وہی بنے گا. پھر ہمارے بچے اور معاشرے میں وجود پذیر ہونے والا پورا معاشرہ اور تمام بچے وہ اچھے بنے. ظاہر بچے آج جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں ویسے بیچارے پروان چڑھ رہے, اور ہم جو والدین ہیں ان کی سستی کا تو کہنا ہی کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, آنے والے جو چھٹیوں کا وقت ہے یا اس سے بھی پہلے جو بھی وقت ملتا ہے, آپ بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اسی میں ہی کامیابی رکھی ہے, دنیا کی بھی نیک نامی بھی اسی میں ہے. فلاں کا بیٹا ہے, بیٹی بھی بہت اچھا ماشاءاللہ, فلاں کا بیٹا بہت اچھا ہے, فرما بردار ہے, حسن سلوک کرتا ہے, بولنے کی تمیز ہے, سب کچھ ہے. ورنہ تو یقین جانے اس وقت جو نوجوان نسل ہے, لڑکے ہیں یا لڑکیاں, مجھے 10 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, 8ویں کلاس سے لے کر BS تک, صرف نمبروں کے علاوہ کوئی فکر نہیں کسی کو. اگر ایک بچہ ہے وہ ٹاپر ہے, نمبر پورے لیے ہیں, اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ٹاپر ہوں, مطلب مجھ سے اس بات کا کیوں پوچھا جا رہا ہے. آج ہماری تمام تر خامیاں وہ دب گئی ہیں نمبروں کے نیچے, نمبر پورے آ گئے, ماں باپ کو باقی چاہے ساری برائیاں موجود. تو اس کے لیے میرے بھائیو, جب تک ہم میں سے ہر ایک فرد, پچھلے جمعے بھی ہم نے اصلاح معاشرہ بات کی تھی, تو آج ایک اور یہ پہلو ہے کہ بچوں کے متعلق ہم سنجیدہ ہو جائیں, تبھی جا کر ہماری ذمہ داری بھی پوری ہوگی, ہماری جو نسل نو ہے وہ بھی صحیح سن لے گی. اچھا ایک اور آخر میں بات ذکر کر کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں, ٹائم بہت ہو گیا. آج دیکھیں, اگر آپ سرچ بھی کریں گے نا, گوگل کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو انسان کی میرج لائف ہے یا شادی شدہ زندگی ہے, وہ جو پھر میاں بیوی کا جو مزاج ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں, اس سے کتنا گھروں کے اندر ڈسٹربنس آ گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مسائل ایسے خود سے پیدا ہو گئے. نہیں, دیکھیں آج جو ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی ہے, ظاہر کل اللہ اس کی عمر میں برکت دے, بڑا ہو 20-25 سال کا ہوگا, ہم اپنے اس بیٹے کی بھی شادی کریں گے, اپنی بیٹی کی بھی شادی کریں گے. بھائی دونوں کو خیر بانٹنے والا ابھی سے بنائے نا, تاکہ اس کے پاس بھی جو اس کی بیوی بن کے آئے یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے, اور ہماری بیٹی بھی اس کے گھر جائے تو خیر کا ذریعہ بنے. ہم اس کی فکر نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے کہ جب شادی کرو تو پہلے جو ہے اتنی چیزیں دیکھ لو لڑکی میں, اور اتنی وجہ سے شادی ہوتی ہے, اور تم دین کی وجہ سے شادی کر. دولت, حسن و جمال, حسب نسب, یہ بات کی چیزیں مل جائیں تو اچھی بات ہے, ورنہ دین پہ کمپرومائز نہیں ہے, باقی چیزوں پہ کر لینا. اور ظاہر ہے وہ دین کب ہوگا اس میں, جب پہلے دن سے اس کو سکھایا جائے گا. ورنہ اس نے جو مزاج اپنے گھر کا دیکھا ہوگا, جو ماحول ظاہر ہے اس میں وہ چاہتے نہ چاہتے اس کا وہی مزاج ہوگا. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی ہماری نسلیں بھی خوشحال زندگی گزاریں, تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اور ویسے ہمیں بننا پڑے گا. دنیا بھی سنورے گی, ہماری آخرت بھی سنورے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.